morning students. So in our today's video we are going to read Francis Bacon's next essay titled Of Travel, and that is taken from a collection of his essays named The Essays or Counsels Civil and Moral, that was written in 1601. And this present essay is written on the subject of travel, and in the essay Bacon has given useful hints with practical significance about travel, and he has told about places and scenes worth visiting, and in a didactic manner he has told about what to do and what not to do in a travel. And there are so many precepts for the readers. The essay is developed in a logical manner, and the style of Bacon is compact and simple. और जो बैकन के एसेज हैं दे आर कंसाइज एंड एपिग्रामेटिक. ठीक है, तो ऐसे की जो राइटिंग स्टाइल है वो एपिग्रामेटिक है. Travel in the younger sort is a part of education, in the elder a part of experience. Means अगर यंग एज में ट्रैवल की जाती है तो that travel is a part of education, but in the elder age it is a part of experience, not education. He that travelled into a country before he had some entrance into the language goeth to school and not to travel. अब यहाँ पे बैकन जो है वो कुछ चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि वह व्यक्ति जो किसी जगह की किसी कंट्री में ट्रैवल करता है, तो अगर उसे उस कंट्री की लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है, if he is unknown to the language of that particular country, तो ये वेस्ट है एक तरह से. ठीक है, तो उसे पहले वो लैंग्वेज सीखनी चाहिए, उसके बाद में ट्रैवल के लिए जाना चाहिए. अदरवाइज़ होगा क्या, जब वो उस कंट्री में ट्रैवल के लिए जाएगा तो वो अपना जो आधे से ज़्यादा टाइम है वो तो सिर्फ वहाँ की लैंग्वेज को समझने में ही वेस्ट कर देगा और उस कंट्री में वो घूम नहीं पाएगा. ठीक है, उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा. So he that travelled into a country before he had some entrance into the language, तो यह व्यक्ति जो लैंग्वेज सीखने से पहले ही किसी कंट्री में विज़िट करने के लिए जाता है, ट्रैवल के लिए जाता है, तो ये ऐसा है जैसा कि वो किसी स्कूल में जा रहा है लैंग्वेज सीखने के लिए, नॉट फॉर ट्रैवल. ठीक है, ट्रैवल के लिए नहीं जा रहा वो. दैट यंग मैन ट्रैवल अंडर सम ट्यूटर or grave servant I allow well, so that he be such a one that hath the language and hath been in the country before, whereby he may be able to tell them what things are worthy to be seen in the country where they go, what acquaintances they are to seek, what exercises or discipline the place yield. अब यहाँ पे बैकन जो है वो कुछ हिंट दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिसको वहाँ की लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है तो उसे अपने साथ में किसी ट्यूटर को रखना चाहिए या फिर किसी ग्रेव सर्वेंट के साथ जाना चाहिए. ठीक है, जिसको वहाँ की लैंग्वेज का नॉलेज हो और जो उस जगह में उस कंट्री में पहले ट्रैवल कर चुका हो, ताकि वो जो ट्यूटर है या फिर वो जो सर्वेंट है वो आपकी हेल्प कर सके उस कंट्री को एक्सप्लोर करने के लिए और उसको समझने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए. ठीक है, एंड ओनली देन ही कैन डिराइव बेनिफिट फ्रॉम दी ट्रैवल. ठीक है, इसी कंडीशन में उसको उस ट्रैवल का कोई बेनिफिट हो सकता है, अदरवाइज इट विल बी वेस्ट. एंड इफ़ द लैंग्वेज इज़ नॉट नोन टू हिम हिज विजिट वुड बी वर्थ लर्निंग द लैंग्वेज ओनली. And if he does not know the language, his concentration will be made on learning the language there. अगर लैंग्वेज का नॉलेज नहीं होगा तो वो अपना जो पूरा समय है, पूरा जो अपना टाइम है वो उस लैंग्वेज को सीखने में ही वो बिता देगा. ठीक है,
And the other suggestion made here is that he should go under the service of an able guide or tutor or servant, and the guide should be such a person who knows that language and also has visited that place earlier. For else young man shall go hooded and look abroad little. It is a strange thing that in sea voyages where there is nothing to be seen but sky and sea, men should make diaries, but in land travel, wherein so much is to be observed, for the most part they omit it, as if chance were fitter to be registered than observation. आगे बेकन बता रहे हैं कि अगर आप सी वोएजेस में हैं, ठीक है, मतलब समुद्री यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसे समय में जब आपके सामने देखने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, आसमान है और पानी है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने साथ में, जब आप ट्रैवल के लिए जा रहे हैं किसी कंट्री में, तो आपको अपने साथ में डायरी रखनी चाहिए, ठीक है, डायरी लिखनी चाहिए आपको ऐसे समय में, क्योंकि जब आपके सामने कुछ देखने के लिए नहीं है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या ऑब्ज़र्व कर सकते हो। तो ऐसे समय में आप, अकॉर्डिंग टू बेकन, ऐसे समय में आपको अपने साथ में डायरी रखनी चाहिए, ठीक है, और डायरी नोट करनी चाहिए, डायरी में नोट करना चाहिए। और इन लैंड ट्रैवल के टाइम में वेर इन सो मच इज़ टू बी ऑब्जर्व, जहाँ पर बहुत कुछ ऑब्जर्व करने के लिए होता है, फॉर द मोस्ट पार्ट दे ओमिट इट, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो ट्रैवल करते समय छूट जाती हैं, तो ऐसे समय में भी उन चीज़ों को रजिस्टर किया जाना चाहिए, उन चीज़ों को नोट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या रखनी चाहिए, डायरी रखनी चाहिए। लेट डायरीज देयरफॉर बी ब्रॉट इन यूज़, सो इस तरह से डायरीज़ का यूज़ किया जाना चाहिए। द थिंग्स टू बी सीन एंड ऑब्जर्व्ड आर द कोर्ट्स ऑफ प्रिंसेस, especially when they give audience to ambassadors, the courts of justice, while they sit and hear causes, and so of consistories, ecclesiastic, the churches and monasteries, with the monuments which are therein extant, the walls and fortifications of cities and towns, and so the havens and harbours, antiquities and ruins, libraries, colleges, disputations and lectures where any are, shipping and navies, houses and gardens of state and pleasure near great cities, armories, arsenals, magazines, exchanges, bursaries, warehouses, exercises of horsemanship, fencing, training of soldiers, and the like, comedies, such whereunto the better sort of persons do resort, treasuries of jewels and robes, cabinets and rarities, and to conclude whatsoever is memorable in the places where they go, ठीक है। तो यहाँ पर बेकन कुछ चीज़ों की लिस्ट बता रहे हैं कि अगर आप किसी कंट्री में ट्रैवल के लिए जाते हैं तो आपको उस कंट्री में किन चीज़ों को नोटिस करना चाहिए, किन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना चाहिए, या फिर उस जगह पर कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो देखने के लिए हैं, ठीक है, वर्थ टू बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है, कौन सी चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की उन्होंने लिस्ट बताई है, जैसे कि कोर्ट्स ऑफ प्रिंसेज, और वो भी किस समय में, व्हेन दे गिव ऑडियंस टू एम्बेसडर्स, ठीक है, कोर्ट्स ऑफ जस्टिसेस, और वो भी कब, वाइल दे सिट एंड हियर कॉजेज, जब वो मामलों की सुनवाई कर रहे हों, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट बताई है, मॉन्यूमेंट्स की, वॉल्स एंड फोर्टिफिकेशंस ऑफ सिटीज़, ठीक है, antiquities and ruins, libraries, colleges, disputations, lectures, shipping and navies, houses and gardens of state and pleasure near great cities, are